Hello students, in last video lecture we studied about gravitational potential energy and potential. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स किस तरह के आते हैं वो पहले देख लेते हैं। हालांकि मुझे पढ़ाना था आपको एस्केप वेलोसिटी, लेकिन जैसे ही मैंने लेक्चर स्टार्ट किया मुझे याद आ गया दैट few numericals are there on the basis of gravitational potential energy and potential. So first of all we will look on those numericals. उन numericals को पहले देखेंगे, then after that we will start escape velocity. ठीक है, तो मैं ये escape velocity यहाँ से हटा देता हूँ, numericals करवा देता हूँ आपको पहले। देखिए, so numericals on gravitational potential energy. So first of all you have to recall the formula of gravitational potential energy, that is the formula of gravitational potential energy is G capital M small m divided by R. And what is the formula of gravitational potential? That will be represented by V, that is minus Gm by R. So two formulas are there. On the basis of these formulas we will do one or two numerical that will be enough to elaborate the topic, to make you able to understand the topic. आपको टॉपिक समझ में आ पाए इसके लिए वो काफ़ी होंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, two masses of 4 kg and 6 kg are kept 20 centimeter away. Find gravitational potential energy between them. उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। सो देखिए, वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। गिवन क्या है, दैट मासेस आर m1 इज इक्वल टू 4 kg and m2 is equal to 6 kg and the distance between them is 20 centimeter, that can be written as 20 into 10 to the power minus 1 minus 2 centimeter. Okay, now as we know, I will write down the formula. U is equal to minus Gm1 m2 upon R. वहाँ पे कैपिटल M है, मैंने कहा वो उसको m1 लिख लिया और स्मॉल m है उसको m2 लिख लिया। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ G इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू m1 इज 4 kg इंटू m2 इज 6 kg and divided by R is 20 into 10 to the power minus 2. So we will multiply these values and we will be able to find the value of potential energy. That will be done by you. Okay, now next question. There is a triangle. This triangle is equilateral triangle which is having sides same. So the side of the triangle is 4 centimeter. Masses m1 is equal to 6 kg, m2 is equal to 8 kg and m3 is equal to 2 kg. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड gravitational potential energy of m3 and second question also find its potential. इसका पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैलकुलेट कैसे होगी।
जब भी आप बात करेंगे किसकी, M3 की, ठीक है, तो यहाँ पे दो मासेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन से, M1 और M2। तो आपको जो कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए मिलेगी दैट विल बी, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मास 1, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मास 2। मास 2 को मैं U2 लिख दे रहा हूँ। अब M1 की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी दैट विल बी माइनस जी M1 M3, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 3 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज R, प्लस एंड साइन विल बी ऑफ माइनस जी M2 M3 if we are calculating potential energy due to mass 2, so it will be M2 and M3 divided by R. Whatever is common you can take outside. So first of all I will take outside minus, then G, then M3 divided by R. All these values are common in both the equations. We are left with value M1 minus M2. Anything else is left? No. So the value of G is minus 6.67 into 10 to the power minus 11. R is 4 centimeter, so it can be written as 4 into 10 to the power minus 2. Okay. Mass M3 is 2 kg, so it will be multiplied by 2, and the value of M1 minus M2, M1 is 6 kg and M2 is 8 kg, so 6 minus 8. Okay, so we are having value 6.67 into 10 to the power minus 11, minus sign is there, and we are left with multiplied by 2 and multiplied by minus 2, and this minus will make plus and divided by 4 into 10 to the power minus 2, 4 से ये दोनों कैंसिल हो गए, so we will be having value 6.67 into 10 to the power minus 9. Light has gone, लेकिन I think you are able to see me, so we will continue, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 जूल। नाउ अब हमें पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर माइनस, सो ये जो भी वैल्यू आपके पास आई है, अगर इसका और इसका रिलेशन देखा जाए, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, इन दोनों का रिलेशन क्या है, दैट इज जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू माइनस यू इज इक्वल टू, ये कंप्लीट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, V इंटू एम, सो V इज इक्वल टू यू बाई एम। इफ आई डिवाइड्स पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई मास, और कौन सा मास, किस मास से डिवाइड करेंगे, जिस मास पे आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसी मास से डिवाइड कर दें हम, तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। सो V will be equal to U by M, so 6.67 into 10 to the power minus 9 joule divided by 2 kg. 2 kg is the mass at which we are calculating potential, so we will left with value 3.335 into 10 to the power minus 9, this is joule per kilogram. This is the value of potential. V is the sign. अब ये जो सिंबल है V, अलग अलग बुक्स में अलग अलग यूज़ किया जाता है। किसी बुक में अगर आपको V की जगह कोई और सिंबल मिलता है तो घबराइएगा मत, बस मुद्दा ये है आपको मतलब इस फॉर्मूले से होना चाहिए, मतलब उस कॉन्सेप्ट से होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिलीवर किया है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be our next question? Let's see.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर की जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है। देयर इज ए मास एट द वर्टेक्स एट द कॉर्नर दैट इज 2 kg, 4 kg, m2, m3 6 kg एंड m4 1 kg। हमें जो मास कैलकुलेट करना है इस पर, वो मास कैलकुलेट करना है m4 पे। सॉरी मास नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। तो कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट m4। m4 पे जो हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। m4 पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बाकी के मासेस की वजह से होगी। हमने जो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन किया था, उस ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में एक मास पे जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे तो वो पोटेंशियल एनर्जी बाकी 2 मासेस की वजह से आई थी। अब सवाल ये है कि यहाँ पे एक मास की वजह से, जो एक मास पे आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, तो बाकी यहाँ पे मासेस कितने हैं? यहाँ पे 3 मासेस है बाकी। तो 3 मासेस कौन कौन से हैं? दैट इज m1, m2, m3। तो इनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट u सॉल्यूशन, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट 4 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी u 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 3। सो दिस इज माइनस g m1 और किस पे? 4 पे निकालनी है, m4 डिवाइडेड बाई r। चलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, प्लस m2 ये वाला मास है, m2 इज दिस। सो दिस विल बी माइनस g m1, नहीं सॉरी m2 m4 डिवाइडेड बाई। अब सवाल ये है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। देखिए साइड है r, तो ये वाला डिस्टेंस r√2। चलिए माइनस का g पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3, सो दिस इज m4 m3 डिवाइडेड बाई r। यू कैन टेक वॉट एवर इज कॉमन इन दिस, ठीक है, इसमें जो भी आपको कॉमन मिलता है वो कॉमन ले लीजिए। सो कॉमन विल बी माइनस g m4 मास इज कॉमन एंड r इज ऑल्सो कॉमन। सो वी आर लेफ्ट विद, एक चीज़ पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलत हो गई, वहाँ पे हमने शायद माइनस कॉमन लिया था, लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद भी एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ नहीं करेंगे। m4 यहाँ बचा, सॉरी m2 बचा, नहीं m1 यहाँ बचा, देन m2 यहाँ बचा, देन m3 यहाँ बचा। अच्छा यहाँ पे इसके नीचे √2 बच गया, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास √2 वैल्यू बच गई, r√2, ठीक है, उसको हम देख लेंगे अभी। तो g m4 डिवाइडेड बाई r, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? m1 इज 2 kg प्लस 4 kg 4√2 प्लस m4 इज 1, वैल्यूज़ लिख देता हूँ पूरी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस m3 इज 6 kg। चलिए अब देखिए, मैं 4 को क्या मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ 2 को, सो इट विल गेट डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स, ठीक है। चलिए तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, √2 टाइम्स से डिवाइड हो गया। आपके पास अब वैल्यू क्या आ जाएगी? -6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू √2, सो 2 इंटू 1.41 दैट इज द वैल्यू ऑफ √2 प्लस 6। सो दीज आर दी वैल्यूज, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स के भी होते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैसे लगती है, तो वो न्यूमेरिकल्स और आप करिएगा
ठीक है, वो टॉपिक हालांकि निकल गया है, तो वो न्यूमेरिकल्स आप अपने आप करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए, आप इन सभी का सॉल्यूशन अपने आप करेंगे और ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनको आप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी एस्केप वेलोसिटी, वो हम एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।